Namaste. Good morning to all of you, my dear students and friends. Myself, Dr. Vinay Patidar, Assistant Professor of Human Physiology and Biochemistry Department of R.N. Kapoor Memorial Hospital and Medical College, Indore. Today, I am going to give a lecture on a topic of human physiology in continuation of webinar lecture series. In this critical time of COVID-19 pandemic, I request to all of you, please follow all guidelines which are provided by the Government of India to prevent ourselves from corona infection, which you can see in my background, such as the social distancing, wear mask if you go outside, do not handshake, frequent hand washing. At the time of sneezing, cover your mouth by handkerchief. If handkerchief is not available, then you can use your elbow like this. If you get any symptoms like cold, cough, fever, etc., then contact that helpline number. They will help you definitely. And the most important thing is stay at home and be safe. Protect yourself. That will protect your family and also this great nation. Thank you. So now we will learn today a very interesting topic of human physiology, that is the male reproductive system. So we are studying the topic, our topic, that is the male reproductive system. This is our college. This is detail about me, जो कि मैंने पहले भी बता दी आपको. The topic, that is male reproductive system. So first we will understand what is the meaning of this word. What is the meaning of the male? What is the meaning of reproductive? And what is the system? Before that, what are our learning objectives? इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे इसमें. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम शॉर्ट में देखेंगे. उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ब्रीफ, लाइक, एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दोनों ही इंटरमिंगल्ड है. एनाटॉमी के साथ में हम फिजियोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे. और उसके बाद फाइनली हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. So word meaning first. The word meaning of the male is used to refer to male or boy, an individual of this sex that is typically capable of producing small, usually motile gametes such as sperm or spermatozoa, which fertilize the egg of a female. Okay? तो मेल का मतलब ये हुआ जो एक इंडिविजुअल सेक्स है और ये रिफर करता है मेन को या बॉयज को, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गेमिट्स, मोटाइल गेमिट्स, और जिसको हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, जो कि फर्टिलाइज करते हैं एग को किसी फीमेल के अंदर. एंड व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी कोई वर्ड हो तो उसको आप ब्रेकअप कर दीजिए दो पार्ट में और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर दो वर्ड है, री एंड प्रोडक्शन. बार बार प्रोडक्शन करना, अपने जैसी जाति का, अपने जैसे व्यक्ति का, अपने जैसे पर्सन का रिप्रोडक्शन करना. So the process by which plant and animal give rise to offspring, and which fundamentally consists of the segregation of a portion of the parental body by a sexual or an asexual process, and its subsequent growth and differentiation into a new individual. तो यहाँ पर दो वर्ड है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेस. हम एसेक्सुअल प्रोसेस कहाँ पर देखते हैं, जहां पर
माइटोसिस होता है, दैट मीन्स समसूत्री विभाजन, तो वो एसेक्सुअल प्रोसेस हो गई, जैसे कि अमीबा में हो गया। ओके, हमारे सेल की ग्रोथ में भी एसेक्सुअल प्रोसेस होती रहती है कि अगर एक सेल से दूसरी सेल बनना है तो वो एसेक्सुअल प्रोसेस है। लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पर उसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, दैट मीन्स मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो 2n से होकर के n हो जाते हैं। अभी 2n है तो फिर n में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज द सेक्सुअल प्रोसेस, को हम समझेंगे बाद में आगे। एंड व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ सिस्टम? ए ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन दैट टुगेदर फॉर्म वन और मोर वाइटल फंक्शन। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऑर्गन जो मिल करके एक साथ काम करते हैं, वाइटल फंक्शंस करते हैं, उसको हम पूरा क्या कहते हैं? सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। ओके, तो यहाँ पर समझ गया, मेल का वर्ड का मतलब रिप्रोडक्शन का एंड सिस्टम का। द रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडल्ट जो रहते हैं उसमें 2n रहता है क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस होता है उसमें, और वो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पर्म में n, अर्धसूत्री विभाजन। आधे जो क्रोमोसोम्स है वो स्पर्म में रहेंगे मेल की तरफ से, और आधे जो रहते हैं वो फीमेल की तरफ से एग का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों वापस इनका जब कंसेप्शन होता है और ये जब दोनों फ्यूज होते हैं तो फ्यूजिंग टू फॉर्म इज द जाइगोट, और ये वापस जाइगोट डेवलप होता है, 2n सेल्स बन जाती है। और ये 2n सेल जो है, इसमें फिर बार बार माइटोसिस होता है और फिर बॉडी का ग्रोथ होता है और डिफरेंशिएशन होता है। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन। एक मेल और एक फीमेल से वापस एक नई जनरेशन का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो यहाँ पर आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्लू कलर इज द हैप्लॉइड स्टेज। ओके, हैप्लॉइड मीन्स which having the n numbers, and diploid stage, that is the indicated by the yellow color. This is the diploid stage having the 2n, that means यहाँ पर क्रोमोसोम का 2n फॉर्म में रहेंगे और यहाँ पर n फॉर्म में रहेगा। ओके, एक वर्ड जो बार बार आता है वो है गोनेट, तो इसका मतलब हम समझ लेगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गोनेट? एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गेमिट्स, ऐसे ऑर्गन जो गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम है, पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेट कौन कहलाएगा? तो मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम गोनेट जो है वो है टेस्टिस, जो कि प्रोडक्शन करते हैं किसका? स्पर्म का, और मेनली जो हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन उसमें है कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, उसका फॉर्मेशन मैन करता है। और फीमेल में गोनेट जो है वो ओवरी, जो एक का फॉर्मेशन करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आखिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल क्या है हमारी बॉडी में, इस यूनिवर्स में? तो मेल का रोल है प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म एंड डिलीवर देम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फॉर्मेशन करना है किसका? स्पर्म का, और उसको डिलीवर करना है कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? प्रकृति में नियम है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपकी जनसंख्या को एक लिमिट तक धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा, और आपकी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आप सरवाइव करने में इजी रहेगा आपको। ओके, तो रिप्रोडक्शन करना एक प्रकृति की देन है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो प्रोड्यूस वन एग ईच मंथ। ओके, एक एक का फॉर्मेशन करना एक महीने में, एंड नरिश एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर जो नई ऑफ स्प्रिंग आ रही है तो उसका नरिशमेंट और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, देन
Each gamete contain 1/2 the number of chromosome, that is 23 haploid जो हमने डिस्कस किया. N is represented 23 chromosomes. And when a egg and sperm fuse at fertilization, they form a zygote with a full set of chromosome, that is the diploid. 46 chromosome are present there, or we can say 23 pair of chromosome present in the diploid stage. And haploid stage में हमने क्या देखा, 23 numbers of chromosome are present. So how developed a male reproductive system, हम इस वीडियो में समझेंगे. Your baby's sex is set at conception. At around 7 weeks, your baby's internal sex organs, such as ovaries and testes, begin to form in the abdomen. Male and female sex organs and genitalia look the same at this stage because they're derived from the same structures. At around 9 weeks, boys and girls begin to develop differently. In girls, a tiny bud emerges between the tissue of the legs. This bud will become the clitoris. The membrane that forms a groove below the bud separates to become the labia minora and the vaginal opening. By 22 weeks, the ovaries are completely formed and move from the abdomen to the pelvis. They already contain a lifetime supply of 6 million eggs. In boys, the bud develops into the penis and starts to elongate around 12 weeks. The outer membrane grows into the scrotal sac that will later house the testicles. By 22 weeks, the testes have formed in the abdomen. They already contain immature sperm. Soon they'll begin the descent to the scrotum, but it's a long journey. They'll reach their destination late in pregnancy or, for some boys, after birth. If you're eager to find out whether you're having a girl or a boy, you'll have to wait until you're at least 17 weeks pregnant. That's when the genitals have developed enough to be seen on an ultrasound. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा. बेबी सेक्स इज सेट एट कंसेप्शन. ओके, कंसेप्शन के समय ही सेक्स का फिक्सेशन हो जाता है कि कौन से सेक्स का फॉर्मेशन होना है. बेबी जो रहेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कंसेप्शन के टाइम में डिसाइड हो जाता है. ये कैसे होता है डिसाइड? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो दोनों अगर एक्स क्रोमोसोम है तो किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फीमेल का बेबी का फॉर्मेशन होगा. अगर कंसेप्शन के टाइम पे मेल से अगर वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है, तो एक्स वाई फॉर्म करता है किसका? मेल बेबी का. Okay, sexual organ takes 7 weeks for begin to form in the abdomen. 7वें हफ्ते में एब्डोमेन में सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. At this stage, male and female genitalia look same because they derived from the same structure. Okay, यहाँ पर दोनों ही मेल फीमेल इस समय पे जेनाइटेलिया जो है, मेल फीमेल जेनाइटेलिया, वो एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चर से उसका फॉर्मेशन होता है. एट 9 वीक दे बिगिन डेवलप्ड डिफरेंटली. ओके, 9वें वीक में दोनों अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होने लग जाता है. डिफरेंट तरीके से दोनों का डेवलपमेंट होने लग जाता है. एट द टाइनी बट फॉर्म्ड बाय दैट क्लाइटोरिस डेवलप इन फीमेल एंड पेनिस डेवलप्ड इन मेल. आपने देखा होगा वीडियो में एक टाइनी बर्ड जो दिखती है, उसका फॉर्मेशन होता है किसमें? क्लाइटोरिस का, फीमेल में, और उसी से पेनिस डेवलप होता है मेल बेबी में. तो ये किससे डिसाइड होता है? तो ये होता है हार्मोनल डिफरेंशिएशन से. अलग अलग हार्मोन इनको डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो इनका डेवलपमेंट करवाते हैं. बाय 22 वीक्स ओवरी एंड स्कोटम फाउंड इन पेल्विस. पेल्विस में 22 वीक का जब बेबी होता है तो 22 वीक में 22 वीक में ओवरी और स्कोटम का फॉर्मेशन होने लग जाता है किसमें? पेल्विस में. 12 वीक में पेनिस का फॉर्मेशन होता है. ओके, अगर हमको पता करना है यूएसजी से कि बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है, तो वो पता करने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कब तक? 17 वीक तक.
17 हफ्ते के बाद ही हम पता कर सकते हैं। लगभग 16 या 17 हफ्ते के बाद ही पता चलता है कि बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है।